Hello everyone, myself Dr. Jyotiri Gulwani with your subject Financial Accounting 1. Again, a new question is there. From the following information of L&T Limited, prepare stock register using FIFO method and calculate closing stock value of the month of the March 2018. Clearly mentioned over here, we have to prepare here stock register according to FIFO method. Now you can see question over here, two type of information is given. One side receipt is given, another side issue is given to us. Now in receipt, date, particulars, quantity and rate is given. So receipt side all the purchases will be there, as well as if any return will be there, then it is to be recorded. Now why return is recorded to the receipt side? Because whatever comes in, it is recorded to the receipt side. So if we have sold the goods and if it is coming back, then it is recorded to the receipt side. In the same way, issue side, here different informations are given related to issue. One new information is there, that is shortage. Shortage, that means there is a loss of stock or there is any you can say that लूजिंग ऑफ दी स्टॉक, कोई भी वे में वो खो गया है या तो शॉर्टेज आई है या तो कमी आई है. तो वाई इट इज़ देयर टू द इश्यू साइड? बिकॉज शॉर्टेज दैट मीन्स योर स्टॉक इज गोन आउट, but by which method it is gone out, it is not clear over here. So that's why it is given to the here issue side. Here new thing is there, you can see over here return from the job. As I said that if anything is coming back to your firm, then it is considered as receipt. Whether भले ही वो सेल्स में से परचेज आया हो, but it is considered as the return. Now let us see the solution of this. You can see over here we have prepared the format, that is receipt, issue and balance is there. And in format what we have prepared, तो again you can see that date, invoice number, जो भी आपका inward invoice number है, quantity, rate, amount. Again outward invoice number, quantity, rate, amount and in balance quantity, rate and amount is there. ठीक है, ये तीन कॉलम सब में सेम रहेगा, सिर्फ रिसीप्ट में क्या रहेगा, इनवॉइस नंबर. दैट इज अब दोनों में ही इनवॉइस नंबर लिख दो शॉर्टकट में तो भी चलेगा. रिसीप्ट जो होगा दैट इज योर इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड जो इशू होगा वो आपका क्या होगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. और अगर दोनों याद नहीं रहते हैं तो सीधा आप शॉर्टकट लिख सकोगे, दैट इज इनवॉइस नंबर. नाउ let us start with the transaction first. So see here you can see that March 18, what we have done on March 1st, purchase. What quantity is purchased? 1700 quantity is purchased at the rate of 2.5. तो ये रिसिप्ट में हमें एंट्री डालना है, इस क्लियरली इट इज गिवन इन द रिसिप्ट. तो फर्स्टली वी हैव मेंशन ओवर हियर द ईयर 2018 मार्च 1st. इनवॉइस नंबर नहीं है, कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं है तो पूरा ब्लैंक हम छोड़ेंगे. क्वांटिटी हाउ मच किलोग्राम्स परचेज्ड 1700 एट द रेट ऑफ 2.5. तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1700 इंटू 2.5 तो अमाउंट कितना आएगा, 4250.00. सब में 0.00 लिखा है, आपको लिखना है तो भी चलेगा, नहीं लिखना है तो भी चलेगा. नाउ देर इज अ नो इश्यू ऑन द सेम डे. हमने सामान खरीदा है लेकिन उस दिन हमने कोई सेल्स नहीं किया है. तो सी नाउ हियर वन एग्जांपल इज गिवन, जहाँ पे आपको बैलेंस में अगर ध्यान नहीं रहता है कि कितना बैलेंस बचा है. इन शॉर्ट क्या समझना है कि यू आर जस्ट रनिंग योर शॉप, आप आपकी दुकान चला रहे हो एंड ऑन 1st March यू हैव परचेज सर्टेन स्टॉक बट यू हैवंट डन एनी सेल्स. आपने यहाँ पे कोई सेल्स नहीं किया. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट स्टॉक इज रिमेनिंग देयर विथ यू. एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सामान कितना बचेगा, तो ये बैलेंस में आएगा. दुकान चलाते हो, ये खरीदा, कुछ बेचा नहीं, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज रिमेनिंग स्टॉक विथ यू. तो हियर यू कैन सी दैट 1700 एज इट इज एट द रेट ऑफ 2.5. तो आपके पास बैलेंस बचा वर्थ ₹4250. दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ मार्च 1st. नाउ डेट देखते जाना है, ठीक है. यहाँ पे 1 के बाद सीधा 6 थे, बट इश्यू साइड देखो तो मार्च 3rd आता है. तो हमें डेट चेक करते जाना है 1 by 1. तो पहले मार्च 1st लिया, नाउ वी आर टेकिंग मार्च
3rd। तो मार्च 3rd में हमने इश्यू किया है स्टॉक ऑफ 1000। अब इसमें कभी रेट आपको नहीं दिया रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको सामान बेचना है, तो आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल होगा उसी में से बेचना है। तो सी मार्च यहाँ पे 1st तक हमने ये 1700 का सामान था वर्थ ₹2.5, कोई परचेज नहीं किया। मार्च 3rd को तो वहाँ पे डैश 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 आएगा। नाउ वी हैव सोल्ड ओवर हियर गुड्स ऑफ 1000 क्वांटिटी। तो देखो सामान हमारे पास कितना पड़ा है 1700। अब इसी में से एक ही सामान है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो एक ही सामान है, कितने रुपए का है ₹2.5 का, तो उसमें से ही हमें बेचना है। तो ओवर हियर 1700 में से हमने 1000 का स्टॉक बेच दिया। कितने रेट पे बेचा 2.5, मल्टीप्लाई करें दोनों को तो कितना आएगा 2500। अगेन रिपीटिंग 1700 यूनिट्स थे हमारे पास, आउट ऑफ दैट वी हैव सोल्ड 1000 यूनिट। जो उसका रेट है वही यहाँ पे आपको प्लेस करना है, मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों को तो 2500। नाउ आउट ऑफ द 1700 स्टॉक हाउ मच स्टॉक इज सोल्ड 1000। तो नाउ एट द एंड ऑफ डे, अभी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है मार्च 3rd का, तो एट द एंड ऑफ डे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 700। 1700 में से 1000 का स्टॉक हमारे पास बचता है, तो 700 इज रिटर्न ओवर हियर। रेट एक ही है तो वही रखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट बचेगा 1750। जितना सामान आता है वो रिसिप्ट में लिखना है, जितना सामान जाता है वो इश्यू में लिखना है, एंड रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग स्टॉक इज मेंशन इनटू द बैलेंस। तो एट द एंड ऑफ मार्च 3rd, ये मार्च 3rd जो ख़त्म हुआ तब हमारे पास कितना स्टॉक था 700 यूनिट्स थे, या तो 700 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 2.5। ये सामान 3rd मार्च तक हमारे पास बचा था। नाउ 3rd मार्च के बाद आपके पास है डेट 6th। ये डेट चेक करो, मार्च 1, मार्च 3rd, फिर 6th है, फिर यहाँ पे 7th है, फिर 10th है, फिर जाके यहाँ पे आएगी 12। तो ये हिसाब से हमें काम करना है। तो हियर रिटर्न फ्रॉम जॉब 100। रिटर्न फ्रॉम जॉब दैट मीन्स आपने जो माल बेचा था उसमें से 100 क्वांटिटी किलोग्राम वापस आया है। तो देखो लास्ट में हमने ये एक ही सामान बेचा था 1000 क्वांटिटी, इसमें से कितना सामान वापस आया 100। तो ये 100 यहाँ पे लिखेंगे। ये किसके लिए हम देख रहे हैं, रेट चाहिए। माल तो 100 क्वांटिटी वापस आया, लेकिन कितने रेट वाला वापस आया 2.5। तो हियर वी हैव टू मेंशन 2.5 एंड रेट इज 250। अभी ये 1000 में से वापस आया, तो अब हमारे पास सामान कितना बचा, तो देखो 700 स्टॉक पहले पड़ा था और ये 100 वापस आया। 700 स्टॉक पहले बचा था 3rd को और ये 100 वापस आया, तो टोटल कितना हो गया 800। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है 800 और दोनों को प्लस इसके लिए किया क्योंकि दोनों का रेट क्या है सेम 2.5। दोनों का रेट अलग होता तो दोनों को अलग अलग लिखते। सो एट द एंड ऑफ 6th मार्च स्टॉक इज व्हाट, हियर यू कैन सी stock is 800 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 2.5। ये स्टॉक हमारे पास यहाँ पे बचा है एट द एंड ऑफ 6th। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑफ मार्च 7। परचेस किया, कितनी क्वांटिटी परचेस किया 1200, उसका रेट यहाँ पे दिया है 3। तो हम परचेज में लिखेंगे, दैट इज रिसिप्ट साइड लिखेंगे। तो 7th हाउ मच क्वांटिटी इज परचेज 1200 एट द रेट ऑफ 3, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3600। नाउ ऑन द सेम डे देयर इज अ नो सेल्स, वो डेट पे कोई सेल्स नहीं है। तो एट द एंड ऑफ 7th मार्च में हमारे पास कितना स्टॉक बचेगा वो यहाँ पे देखना है। तो देखो 6 मार्च को ऑलरेडी 800 था और हमने दूसरा नया 1200 खरीदा, तो दोनों को प्लस नहीं करना है, अलग अलग बताना है। क्यों अलग बताना है, तो सी 2.5 है, ये रेट है 6 मार्च तक का, और नया जो सामान लिया उसे दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। तो एट द एंड ऑफ 7th मार्च
ये 800 वाला पहले स्टॉक एज इट इज़ रखना है और 1200 का नया सामान लिया वो भी रजिस्टर करना है। तो हियर 800 एंड 1200 दोनों सेपरेटली बताया, दोनों का रेट भी सेपरेट बताया और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कर दिया है। लाइन्स आर पुटेड ओवर हियर टू शो योर स्टॉक सेपरेटली। आपको पूरी लाइन्स यहाँ पे लगानी है एक एक ट्रांजेक्शन के बाद, तो आप पूरी लाइन्स भी यहाँ पे लगा सकते हो आफ्टर वन ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज 10th March। अगेन वी हैव डन परचेज ऑफ 500 यूनिट्स और इसका रेट देखो अलग है 3.8। तो अब इसको भी रिसिप्ट में ही लिखेंगे। March 10th 500 स्टॉक इज परचेज, 3.8 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1900। जैसे जैसे स्टॉक आता जाए रिसिप्ट में लिखेंगे और बेचेंगे तो इश्यू में लिखेंगे। अगेन देयर इज अ नो सेल्स। तो नाउ एट द एंड ऑफ 10th March हमारे पास कितना सामान बचेगा एट द एंड ऑफ 10th March। तो देखो ये 800 भी ऑलरेडी सामान था, ये 1200 भी था, प्लस ये नया हमने 500 खरीदा, तो तीनों सामान हमारे पास हैं अलग अलग रेट के। समझो आपकी दुकान है और अलग अलग टाइप के सामान हैं विद अलग डिफरेंट रेट। तो ये पहले वाले दोनों स्टॉक यहाँ पे लिख देने हैं। तो 800 है, 1200 का नया सामान है, प्लस 500 इज परचेज न्यू ओवर हियर। तो सबके रेट अलग अलग हैं। इसका रेट है 2.5, इसका है 3 और इसका है 3.8। तो एट द एंड ऑफ 10th March ये तीनों ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन करने हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास बचा है। ठीक है। नाउ 10th के बाद यहाँ पे 16 डेट है और यहाँ पे 12 है, तो हमें कौन सा लेना है डेट ऑफ 12। अब यहाँ पे हम कितना इश्यू कर रहे हैं 1500। तो अब हम इश्यू करेंगे ऑन 12th। तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इश्यू मतलब सेल्स कर रहे हैं। अब कितना सेल्स करना है 1500। अब देखो लास्ट ऊपर देखना है, हमारे पास 3 सामान थे, एक 800 ₹2.5 वाला, एक 1200 ₹3 वाला और एक 500 3.8 वाला। कौन सा सामान हम पहले बेचेंगे? तो दिस इज अवर फीफो मेथड। फीफो मेथड दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आएगा वो सामान हमें पहले भेजना है या तो बेचना है। तो हम पहला सामान कौन सा बेचेंगे? ये 800 वाला। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सामान हमारे पास था। ठीक है, तो ये 800 यूनिट्स ₹2.5 वाले दे दिए। टोटल हमें कितना सेल करना है? वी हैव टू सेल 1500 क्वांटिटी। आउट ऑफ दैट 800 हमने ले लिया। तो अब हमें लास्ट कितना सामान बेचना है? 700 टोटल बेचना है, लेकिन अलग अलग भाव का। तो ये 800 हमने ले लिया और ये 1200 में से हम कितना निकालेंगे? 700। अगेन टोटल क्वांटिटी वी हैव टू सेल 1500। तो ये 800 हमने पहले दे दिया और दूसरा भाव जो कस्टमर को बोलेंगे कि दूसरा ₹3 वाला है, तो 700 जो बचा है वो आप बेच दोगे वर्थ ₹3। तो अब ये टोटल आप 1500 अलग अलग भाव से बेचोगे। नाउ एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज देयर इन योर हैंड। अभी और कुछ आपने यहाँ पे नहीं किया, तो कितना सामान बचा वो चेक करना है। एट द एंड ऑफ डे सामान गिनते हैं, माल सामान के कितना स्टॉक बचा। तो सी दिस 800 इज ऑलरेडी सोल्ड, तो अब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ आउट ऑफ दिस 1200 वी हैव सोल्ड 700। ये जो 1200 था उसमें से हमने 700 दे दिया। तो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर स्टॉक? ये 1200 में से कितना बचेगा? 500 ओनली। तो यहाँ पे 800 बिल्कुल नहीं गिनेंगे, ये चला गया। 1200 में से 500 बचा वर्थ ₹3। तो ये ₹3 वाला स्टॉक यहाँ पे रखना है और ये 500 जो था विथ 3.8 इसका हमने कुछ भी काम नहीं किया है, तो ये एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। तो वी आर हैविंग 2 स्टॉक एट द एंड ऑफ 12th March। ये 2 स्टॉक हमारे पास है, 500 स्टॉक ₹3 वाला, 500 स्टॉक वर्थ ₹3.8। ये है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो सामान पहले आएगा उसको पहले बेचना है। नेक्स्ट इज नाउ 16 अगेन परचेज किया। ये 12 के बाद यहाँ पे 21 है, लेकिन 21 के पहले कौन सा डेट आता है? 16। तो 16 परचेज 2000 क्वांटिटी इज परचेज्ड एट द रेट ऑफ 2.55।
तो परचेज में लिख देंगे इसको 16, 2000 क्वांटिटी परचेज एट द रेट ऑफ 2.5, तो टोटल हमारा कितना अमाउंट हो गया 5100। अभी वो दिन हमने कोई सेल्स नहीं किया, ये देखो 12 का यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी ये दिन हमने कोई सेल्स नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ डे स्टॉक कितना बचेगा, तो एट द एंड ऑफ डे ये स्टॉक बचेगा, ये 500 और 500 जो पहले के हैं वो भी सामान तो गिनने ही है अगले दिन वाले, तो ये 500 और 500 एज इट इज़ प्लस दिस 2000 इज परचेज न्यू, तो तीनों स्टॉक एट द एंड ऑफ 16 हमारे पास बचेंगे। तो तीनों को यहाँ पे लिख दिया है इन द बैलेंस पर खरीदा हुआ, ये 500 और 500 पहले के जो पहले हैं वो पहले लिखने हैं, जो नया खरीदा वो एंड में लिखना है। नाउ मार्च 21 इश्यू 2500, 2500 का स्टॉक हमें इश्यू करना है। माइंड वेल इश्यू में कभी प्राइस नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भाव का स्टॉक है हमारे पास। तो अभी हमें टोटल कितना सेल करना है, वी हैव टू सेल 2500 क्वांटिटी, 2500 की क्वांटिटी हमें सेल करनी है। तो फीफो मेथड है, जो सामान पहले आएगा उसको पहले बेचेंगे, तो पहले ये 500 बेचेंगे, फिर ये दूसरा 500 बेचेंगे, तो 1000 हुआ और कितना बचा 1500, तो ये 2000 में से 500 निकालें, सॉरी 2000 में से हम निकालेंगे 1500। अगेन बोल रही हूँ कैसे सेल करना है, जो पहले आया उसको पहले बेचेंगे, तो ये पहले 500 3 रुपये वाला देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर ये दूसरा 8 वाला ये यहाँ पे लिख दिया हमने, एंड ये 2000 में से निकालेंगे 1500, क्योंकि टोटल हमें कितना क्वांटिटी सेल करना है 2500, तो यहाँ पे लिख दिया 1500 वर्थ रुपीज़ 2.55। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखना है, तो क्वांटिटी देखो 500 ही बचा। कैसे 500 बचा, 500 गया और ये 2000 में से 500 निकाला, तो व्हाट इज रिमेनिंग क्वांटिटी एट द एंड ऑफ 21 मार्च 500 ओनली, इसमें से सिर्फ 500 बचा, वो यहाँ पे लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट इज 21 के बाद यहाँ पे 31 है, ये साइड देखो तो 28 इज देयर परचेज, कितना परचेज किया 200 एट द रेट ऑफ 3.75 पे यहाँ पे हमने खरीदा है। तो परचेज में इसको लिखो, इन परचेज 200 एट द रेट ऑफ 3.75, 750 इज द अमाउंट, और उस दिन हमने कुछ सेल्स नहीं किया है, यू कैन सी ओवर हियर सेल्स इज नॉट डन, तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पे लिख देना है। तो क्वांटिटी देखो पहले का 500 और अभी का जो नया खरीदा 200, वो दोनों यहाँ पे लगा देना है। तो एट द एंड ऑफ 28 मार्च 500 एंड 200 इज द क्वांटिटी। नाउ आफ्टर 28 लास्ट वन हमारे पास है शॉर्टेज ऑफ 20, तो अभी शॉर्टेज ये हमारा एट द एंड ऑफ 31 मार्च कोई इश्यू रिसिप्ट नहीं है। इश्यू में क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स, वापस बता दूं, इश्यू मतलब आपका सामान गया है, कौन से वे में गया वो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे इश्यू 20। अब ये सामान किस में से निकालेंगे शॉर्टेज, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 28 मार्च को यहाँ पे आपके पास ये 500 स्टॉक था। फर्स्ट फीफो मेथड है ना, इसके लिए हम करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये 500 में से शॉर्टेज 20 निकालना है, तो आपके पास बचेगा 480। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो शॉर्टेज भी इसी में से निकालनी है, पहले सामान में से, कि हम ऐसा समझेंगे कि 2.50 वाला जो स्टॉक है वो हमारे पास नहीं है, तो ये 500 में से 20 निकाल देंगे, समझेंगे इट इज़ अवर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेट लगाया 2.55, अमाउंट आया 51। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग स्टॉक, तो ये देखो आगे का देख सकते हो, ये 500 में से, ये यहाँ पे आप 500 देख सकते हो लास्ट में, दिस 500 में से वी हैव कटेड 20, तो कितना बचा 480, और उसके नीचे जो 200 है वो रहेगा एज इट इज, 500 में से 20 कट, बाकी रहेगा एज इट इज। तो 500 में से 20 गया तो 480 बचा, 200 एज इट इज, बस उसको मल्टीप्लाई करके रख दिया है। फिर जैसे मैंने आपको बोला टोटल करना है,
अब टोटल कैसे करना है स्टूडेंट्स, तो वापस याद दिला दूं, क्वांटिटी का सारा टोटल करना, ये क्वांटिटी का टोटल करना एंड इश्यू की क्वांटिटी का टोटल करना। फिर रेट का कभी टोटल नहीं करोगे, नेवर डू द टोटल ऑफ द रेट, देन डू द टोटल ऑफ अमाउंट, सिर्फ टोटल करना है। डू द टोटल ऑफ इश्यू, डू द टोटल ऑफ द अमाउंट, नेवर डू द टोटल ऑफ द रेट ओवर हियर, रेट का कभी भी टोटल मत रखना, ठीक है। अब फाइनली जाके आपका टोटल ऑफ रिसिप्ट इज 5700, क्वांटिटी टोटल, देन अमाउंट टोटल इज 1585, क्वांटिटी 5020, अमाउंट इज दिस। अभी बैलेंस का भी टोटल नहीं करना है, बैलेंस में क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जस्ट डू द टोटल ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी, इसका ही टोटल करना है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी इज व्हाट इन अवर हैंड, दैट इज 680 एंड 1974। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये 5700 माइनस 5020 करो तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा राइट। इन द सेम वे 15850 माइनस ये करो तो आपका आंसर आना चाहिए 1974। ओनली रिसिप्ट एंड इशू का टोटल करेंगे और जो बैलेंस होगा उसका एंडिंग बैलेंस का ही टोटल करेंगे। एंड टू वेरीफाई वेदर अवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, व्हाट वी हैव टू डू, 5700 माइनस 5020 तो 680 बचना चाहिए एंड दिस माइनस दिस, तो फाइनली ये अमाउंट बचना चाहिए, देन योर आंसर विल बी राइट। So here we are concluding with today's session. In the next video we will go with the next method. So till then stay tuned. Goodbye.